बाइबल अध्ययन का आखिरी दिन होने के कारण हमें कई विषय सीखने हैं। ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿੱਖਣੇ ਹਨ। Therefore, we reduce singing time. इसलिए हमने गीत गाने का समय कम किया। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। We are studying the subject of my and mine. हम मैं और मेरे की भावना का वो विषय सीख रहे हैं। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। And I taught you and I said the greatest killer disease of the body of Christ is mine and myself. कल प्रभु की देह को बर्बाद करने वाली सबसे बड़ी बीमारी मैं और मेरे की भावना है। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। The greatest killer disease of the Church of God is my and mine. प्रभु के शरीर को कलीसिया को तबाह करने वाला महारोग मैं और मेरे की भावना। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। The my and mine has come from our flesh. मैं और मेरे की भावना हमारी शारीरिकता से उभरती है। ਔਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਈ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। This is the same thing that destroyed Lucifer. लूसीफर को भी इसी बीमारी ने बर्बाद किया। ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। Adam and Eve was also destroyed by this same disease. Adam and Eve. आदम और हवा भी इसी महारोग से नाश हुए। ਔਰ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। These days, thousands and lakhs of servants of God and believers are being destroyed by this disease. इन दिनों में हजारों की संख्या लाखों की संख्या में प्रभु के दास और विश्वासीगण इसी बीमारी से नाश हो रहे हैं। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹਾਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। Pastors and servants of God are tempted with this disease. प्रभु के दास और पासबान बुजुर्ग लोगों को इस बीमारी बहुत बहुत खतरनाक तरीके से आकर्षित करती है। ਔਰ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। We work hard to win souls. हम आत्माओं को जीतने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We fast and pray हम for bringing souls. एक आत्मा को उद्धार के मार्ग में आने के लिए आंसू बहाते हैं, प्रार्थना करते हैं। ਔਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। We walk miles and miles on foot to bring some souls to Christ. कुछ आत्माओं को जीतने के लिए मीलों मील हम चलते हैं। ਔਰ ਕੁਝ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੀਲੋਂ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। To bring the souls, we get beaten up. और आत्माओं को लाने के कारण हमें बहुत सतावट का सामना करना पड़ता है, मार पड़ती है। ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। To take the gospel to the distant place, we spend every penny we have. दूर दूर तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए हम पूरा पैसा भी खर्च करते हैं। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Sometimes we starve and save money to reach a place. कई बार हम खुद भूखे रहकर पैसे बचाकर दूर दूर तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं। और कई बार खुद आप भूखे रह के दूर दूर तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। By doing all these things, we get a temptation that this is my work. और इतना कष्ट और पसीने के कारण जो सेवा हुआ है उसके कारण हमारे अंदर एक इच्छा या एक परीक्षा आती है कि ये मेरी सेवा है। और जब इन्ने आंसू अते कष्ट अते मुड़का वहांदे हुए सेवा करते हैं तो बाद विच एक इच्छा आ जाती है ये मेरी सेवा है। How many servants of God understand this? आप में से कितने सेवक और बुजुर्ग लोग इस बात को समझे? साडे विचों किन्ने सेवकां नूं बुजुर्गां नूं ये गल समझ विच आई? Sisters, elders, how many of you understand बहन this? लोग बुजुर्गों कितनों को ये बात समझ में आई? भैणां विचों बुजुर्गां नूं किन्नियां नूं ये गल समझ विच आई?
Lift up your hand. अपने हाथ ऊपर करें। अपने हाथ खड़े करिए। See, we are tempted to say the ministry is ours. हमारे सामने एक बड़ी परीक्षा है साडे सामने एक बहुत बड़ी परख है कि हम कह देते हैं कि सेवकाई हमारी है, जो असी कह देने के सेवकाई साडी है। We spend everything for that. और हमने इस सेवकाई के लिए सब कुछ खर्च किया। असी इस सेवकाई दे लिए सब कुछ खर्च कीता है। Hours and hours we cry for people. घंटों घंटों हम आत्माओं के लिए रोते हैं और घंटियां घंटियां दी तादाद विच असी आत्माओं दे लिए रोने आ। We starve. हम भूखे रहते हैं, असी भुखे रहने आ। We get beaten up. और हम मार पीट भी सहते हैं। असी मार कुट भी सहते आ। Money kept for the fees of the children we use for our journey for the ministry. हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए रखा हुआ पैसा हम लेकर सेवकाई के लिए खर्च करते हैं। साडे बच्चों दी पढ़ाई लिखाई दे लिए जो पैसा उस नु लेके सेवकाई विच वरतदे आ। The money we keep for buying clothes for wife and children, we spend for the ministry. हमारे बच्चों के लिए, पत्नी के लिए पैसे जो कपड़े खरीदने के लिए रखे थे उसको भी लेकर हम सेवकाई में इस्तेमाल करते हैं। जो असी अपनी बच्चों वास्ते या पत्नी वास्ते कपड़े खरीदने दे लिए पैसे रखे हैं वो भी लेके परमेश्वर दी सेवा वास्ते वरतदे आ। At that time the flesh in us will say, और ऐसे कठिन परिश्रम करते समय हमारे अंदर की शारीरिकता कहेगी, और एहो जी औखी मेहनत करदे वक्त साडे अंदर दी शारीरिकता ही आखेगी, this is your church. ये तो तेरी कलीसिया है, ये तो तेरी कलीसिया है, This is your believers. ये तो तेरे विश्वासी हैं, ये तो तेरे विश्वासी है, This is your labor. ये तो तेरी मेहनत है, ये तो तेरी मेहनत है। Therefore your name should be there. इसलिए तेरा नाम उधर होना चाहिए। इसलिए तेरा ना इधर होना चाहिए। Understood? समझ में आया? समझ में What the आया? flesh will say, आपकी शारीरिकता आपसे क्या कहेगी? ताड़ी शारीरिकता तानु की कहेगी? you worked very hard. आपने बहुत मेहनत किया है, तू बहुत मेहनत कीती है, You spent all the money. तूने सारा पैसा खर्च किया, तू सारा पैसा खर्च कीता, And this is belongs to you. अब ये सेवा तेरी है ना, होने सेवा तेरी है ना, This church belongs to you. अब ये कलीसिया तो तेरी है। ये कलीसिया हुन तेरी है। When this murmuring or suggestions of flesh come, if you are not watchful, you will accept it. अगर ये जब शारीरिकता धीरे धीरे फुसफुसाती है, अगर आप जागते हुए नहीं रहेंगे तो आप फंस जाओगे। तो ये धीरे ये जड़ी शारीरिकताई है ये आस्ते आस्ते फसलाउंदी है, जेकर तुसी जागदे नहीं रहोगे तो फंस जाओगे। You will accept the suggestion. और आप अपनी शारीरिकता की बातों को स्वीकार करने लगोगे, और तुसी अपनी शारीरिकताई दियां गल्लां नू कबूल करन लगोगे। Then you will try to protect that people as your own group. और फिर आप अपने कठिन मेहनत से इकट्ठे किए लोगों को संभालने की पूरी कोशिश करोगे, फिर तुसी उनको सुरक्षित रखने के लिए, दूसरों से बचाए रखने की पूरी कोशिश करोगे। तो फिर तुसी औखी मेहनत करके जो विश्वासी इकट्ठे कीते हैं उन्हां नू बड़ी रखवाली दे नाल दूसरों तो बचा के रखने के लिए पूरी रखवाली करोगे। This is the labor of my work, the fruit of my labor. ये मेरे मेहनत का फल है। Pastor Samuel, प्रदीप सामुएल आकर बैठे। हाँ, ये मेरी मेहनत का फल है। Pastor प्रदीप सामुएल आकर बैठे इधर। You will get a temptation. This is my work. आपके अंदर ये परीक्षा आती है, ताड़े- ये तो मेरी सेवा है, मेरा काम है। और ताड़े अंदर ये परख होंदी है कि ये ता मेरी सेवा, ये ता मेरा काम है। No pastor will walk around. If I find any pastor walking, I'll make them public shame. कोई भी पासवान ये बाइबल अध्ययन के समय आगे पीछे चलते फिरते नहीं दिखेंगे तो मैं खुल्लम खुला आपका तमाशा बनाऊंगा। जे कोई भी सेवक पास्टर जो है ये बाइबल क्लास सुनते वक्त इधर उधर सज्जे खब्बे चलते हुए नहीं दिसने चाहिए, जे दिस गए तो मैं तमाशा बनावांगा। I will make you a public shame. मैं आपका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाऊंगा। मैं ताड़ा शरेआम खुल्लम खुल्ला तमाशा बनावांगा। So when you work and when you spend your money, you will get some fruits as believers.
आप जब मेहनत करते हैं, आप जब पैसा खर्च करते हैं, निश्चित है आपको कुछ फल मिलते हैं, कुछ विश्वासी मिलते हैं। ਔਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। Then your flesh will say, this is your group. तब आपकी शारीरिकता कहेगी ये तो मेरी ही खुद की सेवा है, मेरा खुद का काम है। ਔਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਹੀ ਕਹੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। I will not allow any other servant of God to come and have any entrance into that group. मैं कोई भी दूसरे सेवक को मेरे कठिन मेहनत के द्वारा आए आत्माओं से संपर्क करने की अनुमति नहीं दूंगा। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। If I allow other servants of God to come and interfere with them, they may steal them. अगर कोई दूसरे सेवक को मेरे विश्वासियों से संपर्क करने दूं तो शायद वो मेरे बकरियों को चोरी कर जाए। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ Say something against me, then these sheep will not love me. और नहीं तो वो मेरे भेड़ों के अंदर कुछ मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें डाल देंगे और फिर मेरे ही बकरियां मेरे विरोध हो जाएंगे। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। This temptation comes before every servant of God. ये परीक्षा हर एक प्रभु के दास के सामने, बुजुर्ग के सामने आती है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਇਹ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। We have to overcome it. हमने इस परीक्षा के ऊपर जय पाना है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। I have set wonderful examples before you. मैंने आपके सामने कितने अनोखे उदाहरण रखे हैं। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਰੱਖੇ ਹੈ। Among you, no one has suffered like I suffered. आप में से कोई भी मेरी तरह कष्ट नहीं उठाया है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ। None of you suffered hunger as I suffered with myself and with my family and my children. आप में से कोई भी मेरी तरह, मेरे परिवार की तरह भूख सहा नहीं है। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸਿਆ। By authority I say this. मैं बड़े अधिकार से यह बात कहता हूं। ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। None of the workers have suffered hunger as I have suffered with myself and my children. कोई भी सेवक हमारे बीच में जो है, किसी ने भी मेरी तरह, मेरे परिवार की तरह भूख नहीं सहा है। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। No worker has walked as much distance I walked on foot. जितना दूरी मैं खुद पैरों पर चला हूं, कोई भी सेवक इधर उतना चला नहीं है। ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਦਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਦਲ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। No servant of God has been beaten, persecuted as I have been persecuted. कोई भी सेवक यहाँ मेरी तरह मारपीट नहीं सहा है जैसे मैं सहा हूं। और कोई भी इधर जो सेवक है उसने मेरे तरह मारकुट नहीं खादी जिस तरह मैं खादी है। You have suffered persecution to certain extent. आपने कुछ हद तक सतावट सहा है। तुसी कुछ हद तक सताओ सिया है। But none of you have suffered persecution as I suffered. लेकिन आप में से किसी ने भी मेरी तरह सतावट नहीं सहा। पर ताड़े विचों किसी ने भी मेरे तरह सताओ नहीं चलिया। No one of you has spent money for the ministry as I spent. आप में से किसी ने भी मैंने जितना सेवा में पैसा खर्च किया उतना आप किसी ने भी नहीं खर्च किया। और ताड़े विचों किसी ने भी जितना मैं पैसा खर्च किया उतना किसी ने पैसा खर्च नहीं किया। I can boldly say not even 1% of money you have not spent as when I compare out the money which I spent. जितना पैसा मैंने सेवा में खर्च किया बड़े दिलेरी से कह सकता हूं उसका 1% भी आप में से किसी ने खर्च नहीं किया। और जितना पैसा मैं सेवकाई वास्ते इस्तेमाल किया मैं बड़ी दलेरी नाल कह सकदा तुसी ओदे विचों 1% भी खर्च नहीं किया। Many of you are aware of the properties I purchased in all over Punjab and northern India. आप सबको, आप में से बहुतेरों को मालूम है उत्तर भारत में पंजाब में मैंने जो सेवकाई के लिए जमीन जायदाद खरीदी। और ताड़े विचों कईयां नूं पता है कि उत्तर भारत विच मैं सेवकाई दे लई किन्नी जमीन जायदाद खरीदी।
crores and crores of rupees have been spent and purchased plots, land and constructed buildings. करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया गया, जमीन खरीदी, प्रार्थना भवन बनाए गए सेवकाई के लिए, और करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके जमीन खरीदी गई, प्रार्थना भवन बनाए गए सेवकाई वास्ते, and spent lakhs of rupees to buy convention place. और कन्वेंशन के लिए जमीन खरीदने के लिए लाखों में रुपया खर्च किया गया। और कन्वेंशन दे लिए जमीन खरीदਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। At the same time, you are all aware इसी समय आप सबको ये बात मालूम है, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, I did not make ownership of even one believer. लेकिन इन इतनी बड़े भीड़, इतने विश्वासी होने के बाद भी मैं किसी के ऊपर हक जमाता नहीं। और ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। The servants of God whom I brought and taught, and they have become servants of God. कितने लोग हैं जिनको मैं विश्वास में आए, मैंने उनको वचन सिखाया, वो अच्छे सेवक बन गए। और किन्ने लोग ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। As Paul says, I am their spiritual father. जैसे पौलुस कहता है मैं उनका आत्मिक पिता हूं, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਹਾਂ। But when they became able to stand on their own, जब उनको अपने पैर पर खड़े होने के लिए पैर में दम आ जाता है, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, they got place, they got church building, they got number of believers. जब उनको जमीन मिल गई, चर्च बिल्डिंग मिल गई और उनके कई विश्वासी हो गए, और ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, When they show a sign that they do not need me, I never go there again even for once. और जब उनसे कुछ चिन्ह दिखने लगते हैं कि उनको मेरी जरूरत नहीं, तो मैं उन किसी के पीछे जाता नहीं। और ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। Even their believers call me, I do not go. यहां तक कि उनके विश्वासी बुलाए तो भी मैं नहीं जाता। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। When the believers ask me why you are not coming, जब विश्वासी पूछते आप क्यों नहीं आते, ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, I say I have no time. मैं कहता हूं मेरे पास समय नहीं। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। Before you, hundreds of examples are there. आपके सामने सैकड़ों की तादाद में उदाहरण है। और ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। In this Pathankot, I was beaten very badly. इसी पठानकोट में मुझे बुरी तरह मारा गया। ਇਸੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। I labored how much? मैंने कितना मेहनत किया पठानकोट में, मैं कितनी मेहनत की थी पठानकोट में। How many days I lived without food? कितने दिनों मैंने खाना खाए बिना इस शहर में रहा। और किन्ने दिन ਜਿਹੜੇ ਆ मैं खाना खान तो बिना ही इस शहर ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। But the church, the plot was purchased, church was built, and good assembly was established. जमीन खरीदी गई, चर्च बनाया गया, अच्छी कलीसिया खड़ी हो गई। और जमीन खरीदी गई, प्रार्थना भवन बनाया गया ਅਤੇ अच्छी कलीसिया भी खड़ी हो गई। But when the servant of God showed little sign that he doesn't need me, तब प्रभु के दास वहां के उन्होंने कुछ ऐसे लक्षण दिखाने लगे कि मेरी जरूरत ही नहीं है। और तद प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। he expressed indirectly that he is able to do everything by himself. और उन्होंने दूसरों सूत्रों से सूचना पहुंचाई कि वो खुद ही सब काम करना अब जानते हैं। दूसरों के द्वारा संदेश मिला कि वो अब खुद ही अपना काम करना जानते हैं। तो वो दूसरों के द्वारा मैंने पता लगा कि वो कह रहे हैं कि वो खुद ही सेवा करना जानते हैं। I did not go not even once there. एक बार भी फिर उनके पास नहीं गया और एक बार भी मुड़ के उन्हां दे कोल नहीं गया। The elders, believers asked, why are you not coming? कलीसिया के बुजुर्ग पूछे आप क्यों नहीं आते? कलीसिया के बुजुर्गों ने पूछा तुसी क्यों नहीं आउंदे? I just said I have no time. मैंने कहा मुझे टाइम नहीं है। मैं कहा मेरे कोल समा नहीं है। This is one incident. I said there are so many examples before your eyes. ये तो सिर्फ एक उदाहरण, आपके नजरों में कितने और उदाहरण हैं। और ये तो सिर्फ तानू एक ही उदाहरण दी, इस तरह ताड़ियां नजरां विच होर भी कितनियां उदाहरणां हन। Then you may say, is it not foolishness that you allow them to go away? तब आप बोलोगे क्या ये मूर्खता नहीं है, बेवकूफी नहीं है कि आपने उनको ऐसे ही जाने दिया? और तुसी कहोगे ये तो ताड़ी बहुत बड़ी मूर्खता ही है, तुसी उन्हां नू इंज ही छड़ दिता।
Then I reply them, तो मेरा जवाब, मेरा जवाब, the sheep belongs to Jesus. ये भेड़ प्रभु यीशु मसीह के हैं, ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਹਨ। Church belongs to Jesus. कलीसिया मसीह यीशु की खुद की है। ਕਲੀਸਿया ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। Jesus says, it's my church. प्रभु यीशु कहता है मेरी कलीसिया है। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿया। He has given me an opportunity to serve his body. प्रभु ने मुझे उसके देह की सेवा करने का सौभाग्य दिया। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ मौका देता है। The Lord has given me an opportunity to wash their feet. प्रभु ने मुझे मौका दिया कि उसकी देह का पैर धोऊं। और प्रभु ने मैंने मौका दिता कि मैं उसकी देह दे पैर धोवां। Then when the master says, okay, now you don't need to do it, I am happy, I go somewhere else. जब मेरा स्वामी कहता है बस जितना धोना था धो लिया, अब हट जा, तो मैं दूसरी जगह चले जाता हूं। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਸੀ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ दूसरी जगह चला जाना। Why? क्यों? क्यों? All the money I spent belongs to Jesus. क्योंकि जितना पैसा मैंने खर्च किया वो पूरा यीशु मसीह का पैसा है। क्योंकि जितना पैसा मैं वरत्या वो सारा प्रभु यीशु मसीह का पैसा है। All that health, energy I spent for that energy belongs to Jesus. जितना भी ताकत मैंने सेवा में लगाया वो प्रभु यीशु मसीह का ताकत है। और जितनी भी ताकत मैं प्रभु की सेवा में चलाई वो प्रभु यीशु मसीह की ताकत है। How many time I've spent on fasting and prayer, it's all belong to Jesus. जितना समय मैंने उपवास और प्रार्थना में बिताया वो सब यीशु मसीह का समय है। और जिन्ना मैं समा रोजा रखने विच प्रार्थना करने विच गुजारिया वो सब यीशु मसीह का समा है। I have nothing spent on myself. मैंने अपने स्वयं से कुछ खर्च नहीं किया। मैं अपनी खुदी दे नाल या अपने आप कुछ नहीं कीता है। What is mine? मेरा क्या है? मेरा की है? Weaknesses, सिर्फ कमजोरियां, सिर्फ कमजोरियां, unfaithfulness, अविश्वास योग्य, बेवफाई, बेवफा, बेवफाई, unfaithfulness, मैं विश्वास योग्य नहीं था। मैं वफादार नहीं सी। weakness, कमजोरियां, कमजोरियां, hopelessness, आशाहीनता, आशाहीन सी, untrustworthy, मैं विश्वास योग्य नहीं था, भरोसेमंद नहीं था, मैं वफादार नहीं सी। So these are my property. ये मेरी खूबियां हैं, ये मेरी संपत्ति है। ये मेरी संपत्ति या दौलत है। All other belongs to Jesus. बाकी सारी बातें मसीह यीशु की हैं। बाकी सारियां गल्लां प्रभु यीशु मसीह दियां हन। You listen me? क्या आपने सुना? की तुसी सुनिया? Love for the soul belongs to Jesus. आत्माओं का प्यार मसीह यीशु का है। आत्मावां दा प्यार मसीह यीशु दा है। Faith belongs to Jesus. जो विश्वास मुझ में है मसीह यीशु का है। जो विश्वास मेरे विच है वो मसीह यीशु दा है। Boldness belongs to Jesus. जो दिलेरी मुझे है वो मसीह यीशु का है। जो दलेरी मेरे विच है वो मसीह यीशु दी है। Spiritual strength belongs to Jesus. जो आत्मिक बल मुझ में है वो मसीह यीशु का जो है। आत्मिक बल मेरे विच है वो मसीह यीशु दा है। All these things belongs to Jesus. ये सब कुछ मसीह यीशु का है। ये सब कुछ मसीह यीशु दा है। What is mine? मेरा खुद का क्या? मेरा खुद दा की है? Weakness, सिर्फ कमी कमजोरियां हैं। सिर्फ कमियां कटियां। unfaithfulness, बेवफाई है, मेरी बेवफाई है, carelessness. सुस्ती है। सुस्ती है। All these are mine. ये सब मेरी हैं। ये सब मेरियां हन। Then what authority I have to own the church? तो ऐसे जब मेरी कुछ भी नहीं है, कमी कमजोरियां ही हैं, तो मेरे को कलीसिया के ऊपर फिर हक क्या है? जदों मेरे अंदर इस तरह दियां सारियां कमियां कमजोरियां फिर मैनू कलीसिया ते हक की है? All the money I had, he gave. जितना पैसा मेरे पास आया उसने दिया। और जो पैसा मेरे को आया वो उसने दिता। I walked because he gave me help. मैं इसलिए चला क्योंकि उसने मेरे पैरों पे बल दिया। मैं इसलिए चलिया क्योंकि उसने मेरे पैरों को जोर बख्शिया। I suffered persecution because he gave me grace. मैंने सतावट इसलिए सहा क्योंकि उसने मुझ पर कृपा की, मुझे अनुग्रह दिया। मैं सताव इसलिए चलिया क्योंकि उसने मेरे ऊपर कृपा की थी। So I have not even 1% right to own the church or any believer. इसलिए मुझे कोई विश्वासी या कलीसिया के ऊपर थोड़ा सा भी हक नहीं है। इसलिए मैनू किसी भी विश्वासी देते किसी भी कलीसिया देते थोड़ा जा भी हक नहीं है।